So for the projection, we are proceeding that we divide this point into 8 parts or more than 8 parts. So this 4, 1, 2, 3, 4, 5. I am drawing clear figure. Next. Now the projection will become 1, 2 and 12. 3, 11, 4, this again 10, 9. Now we have to draw this diameter 2 on this reference plane. This figure has to be, because in the problem it is very clear that the generator is being laid on the reference plane. So this we have to divert on this, and when this will come to this, the figure, the point C is coming now here. Now the figure C is coming here B and A. And the rest one is 1, 2, 3, sorry, 3, 3 dash, 2 dash, 4 dash, 5, 9 dash, 5 dash, 6 dash, 8 dash. In the elevation we are giving dash, and in the plan we are giving not dash, 1, 2, 3, 4, 5. Now the distance from A to this point, B to A to 3, A to 4, if we are marking here, and now the projection is coming so the distance what is measured here, A to 2 dash, 3 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 9, 6 dash, 9 dash, all these things. And when we are getting the distance from here, this one, this will be projected on this. And you now project your here. So where the point 10, 10, which one is coinciding, you will easily get this part. And here you are projecting this C. So this part will be bold.
In the figure, it is not so much clear, but if you will draw this in your sketchbook, buy one sketch copy and try to draw this problem or try to solve this problem in your sketchbook with the help of scale, and you have to use drafter for solving this problem. And I am also using this with hand only, so right position and right projection we are not getting, so it is facing some problems. Getting my point? So you will draw this problem as a home assignment. Now we will go through second problem. Second problem is a hexagonal prism of side of base 25 mm and length of axis 70 mm is resting on the HP horizontal plane, and one of its rectangular faces and one of on the HP on its rectangular faces. Draw its projection when its axis is inclined to the VP at 45 degrees. Hexagonal prism. How you will draw hexagonal prism? Again, we are starting with here reference plane. One, two, three, four, five, six. Draw its projection. This A, B, C, D. This is in the simple case we are getting this hexagonal prism. This A, B, C, D is hexagonal prism. It's 6 faces are 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How you have to draw hexagonal? You make a circle first and then put 90 plus this much 120 degree from the compass, and you will get each point, or then you can draw easily. Now its second part is, what is its second part?
hexagonal plane of side of base 25 mm and length of axis 70 mm is resting on the HP. From here we have cleared. Now one of its rectangular faces is being laid on the HP. Then also its project also when its axis is inclined to the BP. Axis is inclined to the BP and the rectangular faces, one of the rectangular faces is being laid on the reference plane or HP. This is the side of the hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5 different sizes. Through projection, you are getting this when you will see. So, and here it is axis. It is coinciding here. So, axis is at an angle of 45 degree and one of its faces is being here projected on the reference plane. So, first draw the one plane, one axis of at an angle 45 degree. Then you are knowing that the base of this each is how much? This much base 2 to 3. What is the dimension of 2, 3? Is the dimension of each of the faces of this hexagonal prism. So you put your axis is here. So you have to, and after axis, what is the dimension of this? What is the dimension of each? Or we can calculate by each of the faces from this one to next one, next one to next one, next one to next one from the axis. Then you can draw. So, and one of the faces. So faces we have drawn that it is here, and axis is this. So axis is 45 degree.
this actual figure you will get. If you draw with the scale, then only it will be true, it will come on shape. So try this two problem as a home assignment. On sketch copy. शिव प्रसाद बोलो। हेलो, हाँ बोलो। कहना है कि 45 डिग्री का एंगल क्यों लिए? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसका एक्सिस जो है VP से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना? हाँ सच्चिदानंद बोलो। सर बोल रहे जो जनरेटर बोले उसका मतलब सर? जनरेटर कोण का फेस को, जैसे फेस कोण में जब हम देखेंगे तो कोण में तो चारों तरफ, अब जैसे बोतल में इसमें देख रहा है, इसको हम लोग एज्यूम करें तो इसको फेस में कैसे लेंगे? तो इसका जो सैलेंट हाइट होता है, बेस को जो मिलाता है एपेक्स से, उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, ठीक है? ठीक सर। हाँ कुंदन बोलो। सर बोल रहे कि आप बोले ड्राफ्टर से ये सब ड्रॉ होगा, तो वो अभी हम लोग पास नहीं है। हाँ नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम भी ड्राफ्टर नहीं है तो यहाँ पे ठीक से उस ड्राइंग नहीं कर पाए। डिजाइन में जैसे पॉइंट ये सब मिलना चाहिए तो तुमको एक्चुअल फिगर लगेगा। हम जस्ट एक्सप्लेन करते रहे कि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम बनाएंगे, और उसको तुम कोशिश करो, तुम स्केल और पेंसिल जो है, स्केच बुक जो ड्राइंग का होता है लंबा सा, उस पर तुम कोशिश करो स्केल और पेंसिल से बनाने का, ठीक है? और यहाँ पे जब आओगे तो फिर ड्राइंग शीट पे ये सब फिगर बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो अभी प्रैक्टिस रहेगा तो मैंने दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। अंकित बोलो। सर हम लोग को इंस्ट्रूमेंट खरीदना है क्या? हाँ खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी अवेलेबल तुम्हारे पास कहाँ है या नहीं है अभी तो नहीं बता सकते है ना। हाँ हाँ, और अगल बगल मिलेगा भी नहीं है? तो सर अभी अगल बगल मिल भी नहीं रहा सर। हाँ अभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आओगे तो यहाँ पे कॉलेज के अगल बगल मिलेगा, चाहे जो लोग टाउन एरिया में होंगे। सर अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? घर पर स्केच। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आप पेंसिल और स्केल तो अवेलेबल है, उसे प्रैक्टिस हाँ करो, सर, ठीक है? और सर ये एग्जाम में क्या पोर्शन आएगा सर? किसमें सर इस ग्राफिक्स वाला में मिड वन सर, मिड वन होगा केवल, ठीक है? हाँ सर, ग्राफिक्स का। हाँ सर, नहीं सुने सर नेट। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बोलो। बोलो मनीषा। सर यहाँ पे 45 डिग्री के बाद जो किए वो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसका क्या बोलता है? VP से वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री एक्सिस बना रहा है, मैंने इसका जो है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सिस जो है, तो ये हमारा एक्सिस जो है, ये हमारा एक्सिस जो है प्रिज्म का, वो 45 डिग्री बना रहा है। यस सर। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलो प्रियंका, क्या प्रॉब्लम है? हेलो। हाँ सर शिव प्रसाद साहब बोल रहे हैं सर। हैं? शिव प्रसाद बोलो। सर बोल रहे हैं एक बार क्वेश्चन हम लोग को दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, दिखा देना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, a cone of diameter 60 mm and height 60 mm is resting on horizontal plane HP.
on one of its generator. Draw its projection if its axis is parallel to BP. Question number 2 है hexagonal prism of side of base 25 mm and length of axis 70 mm is resting on the horizontal plane and one of its rectangular faces. Draw its projection when its axis is inclined to the vertical plane at 45 degree. Is it clear? Yes, sir. ठीक. आदर्श क्या है? हेलो हाँ बोलो. हेलो बोल रहे सर कि वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन बोले ना सर, हेक्सागोनल प्रिज्म वाला, उसमें सर हम लोग रुकिए सर एक सेकेंड सर, हेक्सागोनल प्रिज्म दो टाइप से बन सकता है ना सर, जैसे कि हेक्सागोनल प्रिज्म सर ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है ना? एक होता है जैसे एंगल पड़ा, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया. ठीक है? तो यस सर. ये हो गया HP, ये हो गया BP. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मेन हम लोग इसमें करते हैं कि प्लान और एलिवेशन, अगर उसको बॉडी को कोई भी इसको टॉप से देख रहे हैं तो इसका फिगर कहाँ बनेगा? HP पे हॉरिजॉन्टल. यस सर. फ्रंट व्यू देख रहा है, इधर देख रहा है, या साइड व्यू देखेंगे तो बीपी पे बनेगा, इधर बनेगा. इसको ऐसे करके यस सर. कंप्रेस करके इसका इस पे आ रहा है. हाँ. जनरली हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग, या तो फर्स्ट में करते हैं या 3 में करते हैं, थर्ड एंगल. यस सर. और फोर्थ में नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? ये सोचने का विषय है. ठीक है, लेकिन हम बता सकते हैं थोड़ा सा कि सेकंड में क्या होगा कि प्लान आ गया आपके HP पे, और एलिवेशन जब आएगा तो वो BP पे, लेकिन इसको हम लोग BP को रोटेट करते हैं उसको ये पे. तो क्या होगा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का जो प्लान और एलिवेशन हो जाएगा वो HP पे ही आ जाएगा. तो कौन सा प्लान है, कौन सा एलिवेशन है, ये क्लियर करने में दिक्कत हो जाएगी. इसी कारण हम लोग ड्राइंग बनाते हैं फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल. फर्स्ट एंगल में क्या हो गया, जब फर्स्ट एंगल में तो प्लान हो गया HP पे, एलिवेशन हो गया इसका, इधर पे आगे तो एलिवेशन नीचे हो गया. थर्ड एंगल में क्या हो गया कि टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से इधर से तो नहीं देखेंगे, बॉडी अगर यहाँ है तो इसको इधर से देखेंगे तो इसका डायग्राम यहाँ बनेगा. मतलब इधर से देख रहे हैं तो जब प्लान इस पे बन रहा है और एलिवेशन ऐसे कर रहा है तो इसको रोटेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा. दिक्कत यही है. क्लियर हो जाएगा. यस सर. यस सर. सर एक चीज और पूछना था उसमें सर, जो सर्कुलर कोन वाला बताया उसमें 12 पार्ट में जो इक्वल पार्ट में बांटे, उसमें उतना 12 पार्ट बांटना जरूरी है क्या? बांटने से वो जो हम बनाएंगे सर्किल चाहे तो वो जो उसका इलिप्स मिलेगा, सर्किल को बांट के जो कोन में इलिप्स दिखा वो तो यस सर आसानी हो जाएगी. 12 पार्ट बनाओगे तो सर हम लोग 12 से कम नहीं बांट सकते हैं सर? ठीक है, 12 से कम नहीं बांट सकते, मतलब 8 में या 6 में ऐसा कुछ भी हो जाएगा. 8 में भी होगा, लेकिन क्या होगा ना सर? जो इलिप्स बनेगा उसका पॉइंट को मिलेगा, उसको जबरदस्ती फिर मिलाना पड़ेगा. मतलब जैसे इलिप्स बन गया, ठीक है, तो इसमें ज्यादा पॉइंट मिल गया 12 पॉइंट. अब इसमें क्या मान लीजिए यहाँ का पॉइंट भी तुमको दिख रहा है, क्या करोगे तुम? यस सर. जबरदस्ती मिलाओगे या ऐसे आएगा. तो इसके लिए हम लोग ज्यादा पॉइंट लेते हैं ताकि उसमें पॉइंट उनको ज्यादा मिले और वो इलिप्स बने ज्यादा अच्छा हो जाए. यस सर. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू.
बोलो अदर्स, अदर्स। यस सर। हाँ बोलो। हाँ सर, हो गया सर, क्वेश्चन हो पूछ गया, हमें तो ओके, पूछे थे ओके, सर, ठीक। आदर्श ही बोल रहे थे सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नो सर, वही सर हेक्सागोनल मतलब प्रिज्म जो पूछे थे ना, तो एनडी भट्ट की पुस्तक में, एनडी भट्ट के किताब में देखो, ठीक है। हाँ वही, यस सर, एक बार पढ़ लेंगे ना अपने से तो समझ हाँ थोड़ा क्लियर सा हो जाएगा। देखोगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस सर। ओके ठीक है। ओके सर। तो इस दो प्रॉब्लम को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे यस सर। स्केच बुक में। ठीक है, तो छोड़ दे रहे हैं आप, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।